میرے واپسی سوال ہے آپ 248 کی جو ریٹ لگی ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے وہ کس نے ڈکلیئر کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی آرگومنٹ نہیں. یا بتا دیں اگر کسی فورم پہ یہ کہا گیا ہے انہوں نے 248 خود ڈیکلیئر کر دیا، آپ 63 خود ڈیکلیئر کر ان کے آرگومنٹ کے مطابق. اور پھر اور بتاتا ہوں میں اور بتا دوں، ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا سالڈ ہے. 63 کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ورڈکٹ آ گیا ہے. باقی اس کو ڈی نوٹیفائی، جیسا امیر صاحب نے کہا، اخلاقی، قانونی، آئینی. He is no more prime minister. رہ گئی فارمیلٹی، کون کرے گا نوٹیفیکیشن یا کون نہیں کرے گا، وہ ہوتا رہے گا. اور پھر میں دوبارہ بات کو دہراؤں گا. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ ورڈکٹ آیا. وہ کہہ رہے ہیں are likely to entail some serious consequences in terms of Article 63(1) likely to entail لکھا ہوا ہے. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے the constitution which may be treated. تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے وزیر اعظم؟ قانونی طور پہ کیسے نہیں ہے؟ قانونی طور پہ اس لیے نہیں ہے کہ جو پورا اوپر والا بھی اگر پڑھے نا، he is a convict person. یہ بات ٹھیک ہے. He is a convict person. اور وہ آپ 63(1)(g) کو پڑھ لیں. لیکن شاہ صاحب 63(1)(g) کے بارے میں یہاں پہ کلیئرلی نہیں لکھا ہوا. کہا ہوا ہے کہ یہ سچویشن لیڈ کرتی ہے، may lead to 63(1)(g). یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ لیڈ دیکھیں نا. یہ اس کا مطلب ہے انہوں نے گیند پارلیمنٹ کی طرف پھینک دی. نہیں، کوئی پارلیمنٹ کا کوئی دور تک کوئی رول نہیں ہے اس میں. تو پھر آپ کے خیال میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ مجھے ہمیں سمجھائیں، کیا اس پہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن سے کہتی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کریں؟ اب دیکھیں جی، اب سپریم کورٹ کو بہت کچھ چاہیے تھا یا بہت کچھ میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ یہ کر دیتی، وہ فیک ڈگریز کے کیسز میں ہوا وہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے. دیکھیں نا جی، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے 6 مہینے کے لیے فزیکلی اٹھا کے جی ان کو اندر پھینک دو؟ انہوں نے نہیں کیا. سوال یہ نہیں ہے، آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ انہوں نے 30 سیکنڈ میں جو میسج ہے ایپکس کورٹ آف دی کنٹری کا، وہ سمپل یہ ہے کہ شاہ صاحب نو مور، یو آر نو مور کنوکٹڈ، آپ جائیں. یہ بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. اور اگر یہ ملک کے پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آتی، میں عام کسی نتھو پتھو کی ایم پی اے یا ناظم کی بات نہیں کر رہا، میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا. یہ بات ہے. میں دیکھیں، ایک فورن انٹرویو تھا ان کا پرائم منسٹر کا، یہ میں نے نہیں، ان کے اپنی زبان میں انہوں نے کہا. اس نے پوچھا ان سے اینکر پرسن نے کہ اگر آپ کو کنوکٹ کر دیا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا تھا will you step down؟ تو انہوں نے اپنی انگریزی میں کہا کہ نہیں، مجھے سٹیپ ڈاؤن تو آٹومیٹک بات ہے، میں تو پارلیمنٹ کا بھی ممبر نہیں رہوں گا اگر میں کنوکٹ ہو گیا. تو وہ کنوکٹ ہو گئے بائی ہز اون ایڈمیشن. ہونے چاہیے کہ سائٹ پہ ہو جائے. ضروری ہے کہ پاکستان کو بحران میں ڈالیں، ضروری ہے کہ یہ کرائسس کریٹ کیے جائیں کہ مہینہ لگے گا، 3 مہینے. بھائی واٹ فار؟ آپ دیکھیے پاکستان کی عزت کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے ان تمام چیزوں سے. اس بیسس پہ شجیل میمن صاحب اس کا جواب دیں کہ مورل گراؤنڈ کے اوپر ابھی وزیر اعظم نے ایک دورے پہ بھی جانا ہے بین الاقوامی، کیا وہاں پہ لوگ سوال نہیں کریں گے آپ سے کہ آپ کنوکٹڈ ہیں؟ اگر جیسے انٹرویو کا وہ ذکر کر رہی ہیں، اسی طرح کے اور سوالات آئیں گے کہ آپ کنوکٹڈ تو ہیں، یہ چھوڑ دیں کہ آگے ڈسکوالیفائی کیا یا نہیں، کنوکٹڈ وزیر اعظم انٹرنیشنل دنیا میں کیسے دیکھا جائے گا؟ فریہ صاحبہ، انفارچونیٹلی اس ملک میں جو جوڈیشری کا حال رہا ہے، طرح کے فیصلے آئے ہیں. یہ جواب ہم دیں گے وہاں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ جوڈیشری کو اب برا. فریہ صاحبہ میری بات سنیں، میں کسی کی بات میں بھی نہیں بول رہا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں اس شرط پہ پروگرام میں بیٹھوں گا کہ میری بات میں کوئی بیچ میں نہ بولے. جی فرمائیے. پھر میرے بات کے بعد جس کو جو کمنٹس کرنے کر لے، ورنہ میں اٹھ جاؤں گا. بات یہ اگر مورل گراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے تو کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا ہم اس کو بولیں کہ یہ قاتل تھا ذوالفقار علی بھٹو؟ میں آپ کا جواب کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ میرے ٹاک شو میں دے رہے ہیں شجیل میمن صاحب، لیکن آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کیسے سمجھائیں گے یہ جواب؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہماری عدلیہ ہے ہی باعث، یہ کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے عدلیہ میں یہاں غلط فیصلے ہوئے ہیں ہسٹری میں. یہ آپ باہر کی دنیا کو بتائیں گے؟ میری بات سنیں جی، پوری دنیا کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی پوری دنیا جو ہے وہ شہید ڈکلیئر کرتے، عظیم لیڈر دنیا کے لیول کا ڈکلیئر کرتے جس نے ایٹمی قوت اس ملک کو بنایا. تو کیا اگر ججز نے اس وقت کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے پریشر میں آ کے ان کو سزا سنائی، سزائے موت، تو ہم کیا بولیں کہ وہ قاتل ہے؟ تو آپ کہہ دینا کہ پھر فیصلہ آپ نہیں مان رہے، تو پھر تو پیپلز پارٹی کا موقف سیدھا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں مان. میں ایک منٹ عامر صاحب کو بیچ میں شامل کر رہی ہوں، آپ کے پاس واپس فریہ صاحبہ کی بات سن لیں. اچھا سنائیں شجیل میمن صاحب، آپ پوری بات کر لیں.
हामिद मीर साहब की दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने क्लिप्स भी दिखाए, मैं तो कहता हूं सजा याफ्ता तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भी हैं, क्योंकि इनको इसी पाकिस्तान की कोर्ट्स ने इनको जो है सजाएं सुनाई थी, फिर ये मुशर्रफ से जो मुआहदा करके या माफी मांगकर लेके चले गए थे, तो मॉरल ग्राउंड में तो उनको भी वज़ीर आला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी सजा याफ्ता है। अच्छा, वो किस मॉरल ग्राउंड पे वहां बैठे हैं? मेरी बात सुने, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने 6 करोड़ डॉलर की बात की। मैं कहता हूं कि जब मीसा के जमहूरियत इन्होंने साइन किया था, तो उनको उस वक्त स्विस केसेस का पता नहीं था। 12 साल तक स्विस केसेस चलते रहे, आसिफ ज़रदारी साहब जेल में बैठे थे, वहां पे कोई प्रेशर नहीं था। उस वक्त तक एक चीज आप प्रूव नहीं कर सके हो, लेकिन उस चीज को बेस बना के सारी उम्र पीपल्स पार्टी का ट्रायल करोगे आप? तो मियां नवाज शरीफ साहब को मिसा के मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिसा के जमहूरियत साइन नहीं करते, पहले शर्त लगाते कि पहले स्विस केसेस को आप फाइनल अपना फेस करोगे, उसके बाद हम मिसा की जमहूरियत साइन करेंगे। उस वक्त तो उन्होंने माफिया मांगी कि ठीक है, हमने माजी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे जो केसेस बनाए थे वो फॉल्स केसेस थे, और अब हम उन चीजों पे, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है, मीडिया के सामने भी हैं, उसके बावजूद भी ये बात करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक सवाल पूछा था, लेकिन मैं जल्दी से शाहजी से पूछ लूं कि क्या मिसाक जमहूरियत में ये भी था कि आइंदा भी अगर कोई कन्विक्शन होगी तो वो भी नहीं मानी जाएगी? मिसाक जमहूरियत की एग्जाम दे रहे हैं तो माजी के बात हो रही है ना, क्यों की बात नहीं हो रही है? केसेस तो वही है ना फरिया साहिबा, केसेस तो वही है ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल डिक्लेयर किया, ये कल के फैसले बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए प्रेसिडेंट साहब पे जो केसेस लगाना चाह रहे हैं स्विस केसेस, ये केसेस तो वही हैं मिसा के जमहूरियत से पहले वाले। तो आज उसको मियां नवाज शरीफ साहब को याद क्यों आ रहे हैं? जमहूरियत हुआ था, या खत इसलिए नहीं लिख रहे कि आर्टिकल 248 है, आप तो कह रहे हैं आर्टिकल 248 की वजह से लिख रहे हैं। इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट साहब को, शर्जील मेमन साहब के लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, वो आज कन्विक्शन के बावजूद कौमी असम्बली में गए, खिताब किया, उनको किसी ने नहीं रोका। इसकी क्या वजह है? इसका ये सवाल है जिसका जवाब आज पूरी पाकिस्तानी कौम मांग रही है। अच्छा, एक पार्टी कह रही है कि हम सुनामी मार्च करेंगे, दूसरी पार्टी कह रही है हम पीर को बताएंगे। मसला सारा ये है कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ के मसले पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हुकूमत के खिलाफ हैं वो यूनाइटेड नहीं है, वो अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन किसी एक एजेंडे पे इकट्ठे नहीं होते। जफर अली शाह साहब और फौजिया बीबी जो है, इनकी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन इस नेशनल एजेंडे पे भी इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं, जिसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा रही है। और शायद इसीलिए आज वजीर आज़म साहब जो है वो अनचेक्ड गए, किसी ने उनको नहीं रोका, तकरीर करके वापस आ गए। ये बड़ा अहम पॉइंट है और मैं यहीं पे आई लीव दिस एज अ थॉट टू पॉन्डर। वक्फे पे हम जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि इंटरनेशनल मीडिया से पाकिस्तान को कैसे देख रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की सजा पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अगरचे वज़ीर आज़म गिलानी जेल जाने से तो बच निकले हैं, ताहम कई और महाजों पर उन्हें मुश्किलात का सामना है। अखबार के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि इस महाजराई का नतीजा कब्ल इस वक्त इंतखाबात की सूरत में सामने आ सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को सिर्फ अलामती सजा दी है, ताहम इस सजा के नतीजे में वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ सकते हैं। अखबार के मुताबिक गिलानी और उनकी पार्टी का इक़्तिदार में रहना अमरीका के लिए बेहतर होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ पेशरफ्त कर रही है। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है या नहीं? मियां नवाज शरीफ का इस बारे में कुछ और मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का भी उनसे मिलता जुलता मौक़िफ़ है, मगर ये दोनों मिलकर इस वक्त भी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि अलग अलग बोल रहे हैं। इसी पे हम बात कर रहे हैं। दोबारा शजीब अहमद साहब आपके पास चलूंगी। आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एनालिसिस में कहीं पढ़ी थी कि हम तालिबान के खिलाफ ये आवाज उठाते थे कि वो कोर्ट्स को नहीं मानते, ये बात बड़ा खुलकर कही गई। जर्नैलों के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो कोर्ट्स को नहीं मानते। अब आपकी हुकूमत के बारे में भी हम यही कहें कि जमहूरी हुकूमत है, मगर वो कोर्ट्स को नहीं मानती, अदलिया को नहीं मानती। फरिया साहिबा, अगर हम कोर्ट को नहीं मानते तो हम मियां शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज की तरह जाके कोर्टों पे हमले करते, वहां गमले तोड़ते। हम लोग तो बड़े वहां पे अदब के साथ गए, अदब के साथ सब वापस आ गए, ना कोई नारा लगा वहां पे, ना कोई तोड़ फोड़ की जिस तरह माजी में इन्होंने की थी। दूसरी बात, जिस तरह आप कहते हैं कि हम कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को पीपल्स पार्टी मानती है, पीपल्स पार्टी सारे फैसले तस्लीम करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो अदलिया का रोल रहा है वो
मुझे कुछ हद तक नेगेटिव भी नजर आता तो है। ये अगर आप contempt ये of खुद ही court में- आपने बात को चेंज कर दी ना। एक तरफ आप कह रहे हैं मैं कोर्ट को मानता हूँ, नहीं, दूसरे सुन तो ले। माजी में बहुत रहते हैं आप, थोड़ा सा प्रेजेंट में आ जाए। नहीं, वेलकम टू 2012। नहीं, अगर नहीं, मैं अच्छा बात सुन, मैं माजी के मसाल नहीं देता, लेकिन अगर इन्हीं जजेस जो आज बैठे हुए बेंच में, इन्हीं के दौर की, अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं, तो जब इन्हीं कोर्ट्स ने इजाजत दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की, परवेज मुशर्रफ उस वक्त थे सदर पाकिस्तान, और उन्होंने उस जहाज को लैंड नहीं होने दिया, उसको वापस भेज दिया। इन्हीं कोर्ट्स आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस वही हैं, इसलिए कह रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब यही थे जी। हाँ जी, मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज, कि ये चीफ जस्टिस साहब वही थे उस वक्त, और उन्होंने उनके हुक्म की परवेज मुशर्रफ ने नाफरमानी की, नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उन पे वक्त होना चाहिए था, लेकिन तो अफसोस की बात है क्योंकि वो डिक्टेटर थे। नहीं, वही फिर आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मेरी बात तो सुने जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुशर्रफ पे होना चाहिए था तो क्यों नहीं किया गया? पब्लिक में इस तरह के सवालात जहन में आते हैं, अगर पब्लिक जो है वो अपना रिएक्शन रखने का पूरा हक रखती है, क्योंकि और अगर अवाम की राय बताऊं तो अवाम की राय कल की मुल्तान की इलेक्शन में देख लें। मुल्तान की इलेक्शन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की फेवरेट सीट थी, उसमें उनको शिकस्त हुई और पीपल्स पार्टी जीती है। और ये सिर्फ इस कोर्ट के रिजल्ट के बाद, इस जजमेंट के बाद ये चीज आई है। कह रहा था कि इन्हीं कोर्ट ने जब माजी में डिक्टेटरों को जो है वो वर्दी के साथ दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, इन्हीं जजेस ने जो है उन पे कंटेम्प्ट नहीं दिया, तो पब्लिक ये सोचती है कि हमेशा पतली गर्दन समझ के जो है वो पीपल्स पार्टी का ही जो है। थोड़ा सा अगर शाह साहब इजाजत दे, मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूँ। मैं तो किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है। ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं शर्जील मेमन साहब के, नवाज शरीफ साहब को वापस आने की कोर्ट ने इजाजत दी थी, उनको वापस भेज दिया गया, तो ये सितंबर 2007 की बात है। लेकिन उसके बाद फिर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई, और फिर 11 नवंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शर्जील मेमन साहबा की पार्टी की शहीद चेयरपर्सन, इस्लामाबाद की जजेस कॉलोनी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के घर के सामने गई और उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस मेरा चीफ जस्टिस है, इसके घर पे मैं झंडा लहराऊंगी। तो रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। देखें, मसला बड़ा सीधा सा है। अब ये जो एक पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, हर आदमी ने अपनी अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना है। अब एक बहुत अहम सवाल पैदा हो गया। आप इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अब क्या होगा? देखें, अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रास्ता मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट जो है, पहले तो उसको ये चाहिए कि डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो अपना जल्द अज जल्द जारी करे। उसके बाद भी अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 190 है। आर्टिकल 190 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि अगर उसके फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं, और फौज भी शामिल नहीं, उसमें फौज का पर्टिकुलरली जिक्र नहीं है, लेकिन आम आदमी से लेकर तमाम अदालतों तक, हाँ, सबको वो कॉल कर सकती है, मदद के लिए बुला सकती है। उस वक्त ये देखना होगा हमें कि अगर 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो क्या नवाज शरीफ और इमरान खान और मुनव्वर हसन और जो दीगर पार्टियां हैं, क्या ये इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट की अपील पर लब्बैक कहते हैं या नहीं? असल सवाल अब यही है कि क्या ये फरिया साहबा, एक मिनट फरिया साहबा, कह दिया है फरिया साहबा, मैं आई हूं आपके पास जी मेमन साहब, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये है कि जैसे हामिद मीर साहब के बात का जवाब देना चाहता हूं। बात तो सुने दें जी मेमन साहब, आपके पास आ रहे हो, इकट्ठे जवाब दें। जिस तरह कानून इक्वल होता है, कानून सबके लिए बराबर है, लाकानूनियत भी बराबर होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ भी नहीं पूछा, उधर भी नहीं पूछा, हर चीज बराबर होनी चाहिए। उनका आर्गुमेंट ये है। अब फिर वो तो जबरदस्त लोग हैं, फिर वो ट्रायल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। और आप लोग क्या बात है, बेबी मेरी बात सुने। सवाल ये है कि एक बाकायदा एनआरओ, देखिए ना हिस्ट्री कितनी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। एनआरओ को स्ट्रक डाउन किया, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा कि भाई ये आप बात करें, उन्होंने नहीं की। और आज मैं जो अर्ज करना चाहता, मैं मीर साहब से बात कर रहा था कि अब जो आज दिक्कत है इनको, ये नहीं कि ये भोले हैं पीपल पार्टी वाले, इनको समझ नहीं, या ये नहीं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये समझ नहीं कि मैं फर्क हो गया हूं। सवाल ये है कि अब आगे होना क्या चाहिए। लेकिन शाहजी फिर भोले तो आप लोग हुए ना, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कहा तो आपने था, आके दिखाया असेंबली में, आगे भोले वो नहीं है, भोले आप लोग। मैं पहले कह चुका हूं कि 342 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ द असेंबली, दे आर रिस्पांसिबल कि उन्होंने एक अजनबी आदमी को कैसे चुना। मैं कह रहा हूं, एंड योर पार्टी इज इक्वली रिस्पांसिबल। 342 में शामिल हूं ना मैं। ठीक, वो तो मान रहे, लेकिन आपकी पार्टी के बाकी मेंबर्स मान लेंगे ये बात? माने या ना माने, मैं तो देखे ना जी, मैं एक अपनी एक राय भी रखता हूं और मैं कानूनी पोजीशन जो है मैं वो आपको बता रहा हूं। अब सूरत हाल जो है ये इनको जो दिक्कत दे रही है, देखे ना जी, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाए
प्राइम मिनिस्टर खुदा ना करे कि उसकी जान को कुछ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए, प्राइम मिनिस्टर अदम एतमाद हो जाए, उसके बाद तो आगे क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि जनाब इजलास बुलाएं इस पर्पस के लिए।